Hello everyone, welcome to Magnet Brains. My name is Tess Anna Jose and we are starting off with a new unit today, right? We are starting off with unit 3 and the first poem that you have is Run. Nice ना? नाम ही इतना मज़ेदार है. जल्दी से अपनी सीट से उठ जाओ, एक बार रूम में चक्कर मार के भाग के वापस सीट पे आ जाओ, right? So the poet is Mary Daunt. Mary Daunt, right? As I always say, please try to remember the name of the poet along with the poem. ठीक है, जब आप पोएम याद करते हो उसके साथ साथ में पोएट का नाम भी याद कर लिया करो, right? So we'll start off with a poem. We'll read it first. ठीक है, we'll read it first. After that, we'll go on with the explanation. Away from the city and into the sun, out to the country, run, run, run. Run in the raindrops, run beneath the trees, run little races with each little breeze. Run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again. Run and be merry all through the day. Run to the country, away, away. So, पोएम सुन के क्या लगता है? What is it about? It's about running, है ना? The poet is asking you to run. बस भागो. किधर भागो? Many places. Leave the city. City छोड़ो and कहीं भी भागो. Run into the meadows, run into the fields, run up the hill top, run down the hillside. जहाँ चाहे भागो. Leave the city once and outside the city you'll find lots of places to run. सोच के देखो, अगर आप सिटीज़ में रहते हैं, आपको भागने की जगह मिलती है? No, not at all, right? हाँ, parks and small playgrounds होंगे आपके पास to run, but still, can you run as much as you want? Like इतना भागो कि ना ऐसा लगेगा पैर अभी अलग ही हो जाएगा आपकी बॉडी से. इतना तेज कहीं भागने की जगह है? No, you don't have, right? So the poet is asking you to leave the city and move towards outside the city and start running. And what does he say? Run into the meadows. Meadows मतलब open ground, ठीक है? Green open ground. वहाँ भागो. Then hills के ऊपर नीचे भागो. Then छोटे छोटे रेसेस करो. किसके साथ? किसी पर्सन के साथ करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे हवा चल रही है उसके साथ साथ भागो. सो यू विल फील दैट यू आर रेसिंग विद द विंड, विद द ब्रीज. व्हाट इज ब्रीज? हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा, ठीक है? लाइक रेनी सीजन में जो हवा चलती है ना, दैट. सो नाउ वील स्टार्ट ऑफ विद द पोएम. कीप योर पेंसिल्स रेडी एंड अंडरलाइन ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स, ठीक है? चलो स्टार्ट. अवे फ्रॉम द सिटी and into the sun. So into the sun means the poet is talking about morning time. Into the sun मतलब daylight में निकल जाओ बाहर and start running. Away from the city. City से निकलो and बाहर जो दुनिया है, सुबह का टाइम है, दिन का टाइम है, just start running. Out to the country. Now this country does not mean India के बाहर, वो वाला country नहीं. Country side is गांव वाला एरिया, मतलब सिटी से बाहर का जो आउटस्कर्ट्स है वो, ठीक है? So that is country. यहाँ पे country means that. So he says city छोड़ के run into the villages, run into the countryside, ठीक है? मतलब cities के बाहर वाले एरिया में. Run, run, run. Run in the raindrops. Now यहाँ पे he is talking about morning, है ना? Morning or day, sunny day. How do you know he is talking about sunny day? Because he is saying telling you to run in the sun. Now next he says run in the raindrops. So it is raining, right? So it is raining. So first he tells you to run in the sun, then he tells you to run in the rain. Run neath the trees. Trees के नीचे नीचे से भागो. What is neath? आपको पता है what is neath?
This is the short form for beneath. नीथ मतलब beneath, beneath मतलब नीचे, ठीक है. beneath means नीचे. be को हटा के we put a apostrophe there, right? That is the short form for beneath, and beneath means नीचे, ठीक है, नीचे. So run in the raindrops, run neath the trees, run little races, छोटे छोटे races करो. किसके साथ? With each little breeze, with the each little breeze मतलब wind के साथ, with wind. Breeze is slight, very light wind, ठीक है, very light, जो बहुत अच्छा pleasant हो वैसा, ठीक है, मतलब बहुत तेज हवा चल रही है वैसा नहीं, एकदम pleasant सी हवा. Okay, so away from the city and into the sun, out to the country, run, run, run. Run in the raindrops, run beneath the trees, run little races with each little breeze. Okay, you've understood, right? First para mein he's talking about a sunny day, second mein he start talking about rain and telling you to run beneath the trees, and neath is beneath, niche. Okay, run down the hillside. Now he is telling you to run down the hillside. मतलब if this is your hill, he is telling you to run down. That is hillside. Down the hillside, up the hillside. है ना? Easy. So he is telling you to run down the hillside, run up the lane. What is a lane? Lane किसको बोलते हैं? रास्ता. If this is your road, you'll have buildings here. Right? So this is the lane and he is telling you to run up the lane. Up the lane doesn't mean कि आपका lane ऐसे ऊपर जा रहा है. It means सामने की तरफ, ठीक है? It means सामने की तरफ भागो. First he tells you to run down the hillside, then he tells you to run up the lane through the meadows, then run back again through the meadows. Meadows is large green open ground, ठीक है, मतलब फील्ड जैसा जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज होंगे, प्लांट्स होंगे, फ्लावर्स होंगे, छोटे छोटे एनिमल्स होंगे, बटरफ्लाइज होंगे, राइट? दैट्स अ मेडो, मतलब ओपन फील्ड है. So he tells you to run up the hillside, down the hillside, up the lane, into the meadows. मतलब खुली जहाँ जहाँ दिख रही है, जगह जहाँ दिख रही है वहाँ पे भागो. Then run back again. And जिस रास्ते तुम भागे हो उसी रास्ते वापस भी आ जाओ भागते भागते. Run and be merry. Merry is to be happy. Merry is to be happy. He says भागते रहो and be happy. All through the day, पूरा दिन. He means कि पूरा दिन be active. एक जगह पे बंद रह के या सिर्फ एक ही काम करके मत रहो. Try to move outside, run as much as you can and be happy. Run to the country, away, away, away. So he means कि in all, what does he mean? He does not mean कि city छोड़ के बाहर भागो. He means कि आपको जो एक closed life है अभी इस आजकल के टाइम पे what do people usually do? They spend most of their time with their phones, right? Phones, लैपटॉप, पीसी, इन्हीं के साथ सारा दिन निकल जाता है. गेम्स खेल रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, ऑफिस के काम कर रहे हैं, स्कूल का होमवर्क कर रहे हैं, प्रोजेक्ट वर्क्स करना है, सब कुछ करना है, एंड एवरीथिंग गोज अराउंड इनसाइड वन रूम, है ना? पहले के टाइम पे क्या होता था? इतना ज़्यादा होमवर्क नहीं था, पहली बार, राइट? सही है ना? इतना ज़्यादा होमवर्क नहीं होता था, तो थोड़ा सा होमवर्क किया, बाहर खेलने गए, बुक्स प्रोजेक्ट वर्क करना है, लाइब्रेरी गए. So there was a lot of different things to do. Nowadays everything is available in your palm, right? आपके फ़ोन में आपको लाइब्रेरी मिल जाता है, आपको गेम्स मिल जाते हैं, मूवीज़ मिल जाती हैं, सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ है फ़ोन में. So our life is kind of closed in a single room. एक रूम में हमारा लाइफ बंद हो गया है ना, काइंड ऑफ.
सो द ऑथर पोइट वॉन्ट्स टू से कि ऐसा नहीं होना चाहिए. यू शुड नॉट बी कन्फाइंड टू अ सिंगल रूम. आपका लाइफ एक रूम में या एक ही जगह पे बंद नहीं होने का है. You should run outside. He means you should be active. You have to explore. You have to move out. मतलब बाहर निकलो, देखो सब कुछ जो है आसपास, उसके बारे में जानो, right? So he means to be active in your life. Keep on doing something physically. मतलब physical movement होना चाहिए आप में. So that poem through this, मतलब run से the poem wants to tell you कि you should move to the outside world and closer to nature. ये भी है, and closer to nature, right? Nowadays you don't have a lot of trees around you. Cities में तो बिल्कुल भी trees नहीं है, right? So you should plant more trees. You should move to areas where there is a lot of greenery, है ना? एंड ग्रीनरी ऐसे खुद से तो आएगी नहीं. वी हैव टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लांट्स, द ग्रीनरी अराउंड योर सेल्फ. समझ में आया? ठीक है. सो नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू हैव अ बर्थडे, वेन एवर यू हैव एन एनिवर्सरी, वेन एवर यू आर विजिटिंग समवन, ट्राई टू प्लांट देम, गिव देम अ प्लांट, राइट? चाहे जितना छोटा प्लांट क्यों नहीं हो, ट्राई टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लांट्स अराउंड यू. ठीक है. सो थ्रू द पोएम द पोएट वॉन्ट्स टू से कि यू शुड नॉट कन्फाइन योर लाइफ टू अ सिंगल रूम. एक रूम में बंद आपकी लाइफ नहीं होनी चाहिए. यू शुड मूव आउट, यू शुड रन, यू शुड हैव फिजिकल एक्टिविटीज एंड यू शुड बी बाउंड टू द नेचर. यू शुड मूव क्लोजर टू द नेचर. आपको नेचर से और क्लोज होना है. ओके, इजी पोएम थोड़ा सा, राइट, है ना? सो यू कैन लर्न द पोएम एंड द पोएट्स नेम. Right? So the summary is the poet wants us to make a connection with the nature again. She asks the readers to leave the city and run out to the countryside, to run along the hillside, in the rain, through the meadows. The poet asks you to run to far away places. So the poet is asking you to make a connection with the nature. Nature के साथ एक connection बनाना है. जितनी भी जगह the poet said in the poem are all in nature, right? कुछ भी man made नहीं था उसमें. The forest, the rain, the meadows, everything is in the nature. So the poet wants you to make a connection with the nature, and she wants you to move outside to the world, right? So that was your poem Run. We'll read it once more. Away from the city and into the sun, out to the country, run, run, run. Run in the raindrops, run neath the tree, run little races with each little breeze. Run down the hillside, run up the lane, run through the meadow, then run back again. Run and be merry all through the day. Run to the country, away, away. Right? We are starting off with the exercises for our poem Run. Do you remember the poem? Poem क्या था हमारा? The poem was about leaving our rooms, leaving the city and moving towards the countryside. Right? It doesn't mean that you have to leave your house, leave your home and move to the countryside. The poet wants you to explore the nature. The poet wants you to make a connection with the outside world. He wants you to run outside to the countryside, into the meadows, in the rain, in the sunny day, up the hills, up the lane, down the hillside, right? So the poet wants you to run outside, explore the nature, have an active life, है ना? Should not confine your life to a single room, to a single place. You should explore whatever is there around you, making a stronger bond, a stronger connection with the nature, है ना? आपको बाहर की दुनिया से नेचर के साथ एक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाना है. You should plant more trees. You should give plants as gifts so that there are more number of trees, right? Cities में trees वैसे भी कम है. So you should take initiative to increase all that. So that was about your poem, right? So we'll be doing the exercises from today. So you have the new words raindrops.
RAINDROPS। रेन ड्रॉप्स तो सबको पता है ना, बारिश की बूंदे। RAIN रेन, DROPS drops. Okay. Next is neath. I told you in the poem, neath short form है, right? Neath short form है for beneath, right? इतना पोर्शन हटा दिया हमने. ओके, दिस इज एन ओल्ड वे ऑफ सेइंग. आप अब जब हम लोग बात करते हैं या लिखते हैं तो इट्स वेरी रेयर दैट वी यूज दिस. इट्स एन ओल्ड वे ऑफ सेइंग बीनीथ, राइट? पोएम्स में लाइक यू को दाओ बोलते थे. सो इट्स एन ओल्ड वे. ब्रीज, अ स्लाइट विंड. वेरी प्लेजेंट विंड, मतलब एकदम हल्की सी हवा जो बहुत अच्छी लगती है ना, एकदम प्लेजेंट होती है, काइंड ऑफ दैट. हिल साइड, हिल का साइड, HILL हिल, SIDE साइड. मेडो, एन ओपन ग्राउंड. राइट, मेडो इज एन ओपन ग्राउंड जिसमें बहुत सारे प्लांट्स होंगे, ट्रीज होंगे, देन फ्लावर्स, बटरफ्लाइज, छोटे छोटे एनिमल्स, बर्ड्स, ऑल दिस, राइट? कंप्लीट ग्रीनरी, दैट इज मेडो. MEADOW, MEADOW. लास्ट इज merry, MERRY, merry means happy. You wish Christmas as Merry Christmas, right? Why? That means happy Christmas. So merry is happy, joy. Okay, so RAINDROPS, raindrops. NEATH is beneath. BREEZE, breeze, हल्की हल्की हवा. HILLSIDE, hillside. MEADOW, meadow. And MERRY, merry. Okay? You've understood all the words? Next is, what does the poem tell us to do? वो सबसे ज़्यादा क्या word use हुआ है? क्या use हुआ है? The poem tells us to run. Outside the city into the nature. So the poem tells you to run outside the city into the nature. And what all are there in the nature? There are trees, there are hills, then rain, sunny day. Everything is included in the nature. So the poem tells you, in the poem we read, to run in all these things. So the poem asks you to run outside the city into the nature to make a fresher bond with the nature. Okay? So the poem tells us to run outside the city into the nature. Write about the places where the poet wants us to run. The poet wants us to run in the rain, in the meadow, up the lane, down the hillside, और क्या था?
into the meadow and beneath the trees. Okay, so the poet wants us to run in the rain, in the meadow, up the lane, down the hillside and beneath the trees. Done? Clear? कहाँ कहाँ भागने को बोला? ग्राउंड्स में, रेन में, ट्रीज के नीचे, हिल के नीचे, मतलब हिल से नीचे, से जो सीधा रोड है उस पे. सो he wants you to run wherever there is place. जहाँ खुली जगह दिखी बस भागो. Right? Some letters are missing in each word. Write EE or EA. You know EE और EA को A ही pronounce करते हैं. Right? A ही pronounce होता है वो. A. तो कोई भी हो सकता है. So let's see. TR-S. TREES. Trees. Right? SLEEP. Sleep. BEEP. Beep. PLEASE. Please. TEASE. Tease. What is tease? किसी को छेड़ना. मजाक उड़ाते हैं ना. किसी किसी के डबल नेम होते हैं तो हम लोग मजाक मजाक में वो नेम बोलते हैं ना. दैट इज टीजिंग समवन. ठीक है, किसी का मजाक उड़ाना. F-T. FEET. Feet. TEACH. Teach. Teach is to teach something. किसी को कुछ सिखाना. TEACH. MEET. Meet. किसी से मिलना. Right? किसी से मिलना. So TREES. Trees. PLEASE. Please. TEASE. Tease. TEACH. Teach. SLEEP. Sleep. BEEP. Beep. FEET. Feet. MEET. Meet. Okay? Now add more words with EE or EA. चलो ठीक है. DEER. Deer. That is हिरन. है ना? हिरन. Okay. And DEAR. Deer. ये कौन सा डियर है? Oh my dear. वो वाला डियर. This is my dear. You don't have to write the brackets, okay? Just समझाने के लिए लिखा मैंने, okay? So dear and dear. और क्या है? Meet and meet. Meet. मिलना. Meat. जो नॉन वेजिटेरियन मीट होता है, मीट, फ्लैश, वो. देन और कोई वर्ड है? हो गया. ओके. टू तो हमने अभी लिख लिया. इफ यू नो मोर वर्ड्स यू कैन राइट देम. एक्चुअली यू शुड फाइंड आउट डिफरेंट वर्ड्स. सेम ट्यून होना जरूरी नहीं है. दिस इज जस्ट टू शो, राइट? दिस इज जस्ट टू शो यू. सो डियर, डियर, मीट, मीट. और भी वर्ड्स होंगे. नेक्स्ट, answer the questions by looking at the picture on the opposite page. ठीक है. What is happening in picture 5? The girl is diving into the water. Okay, so we'll see what pictures are there. We have to see what is Mohan practicing in picture 4. What are Anil and friends doing in picture 3? We have to see 4, we have to see 3 and we have to see 2. Where are the boat racing in picture 2? Okay, let's see. पहले क्या है? 4. So the fourth one is it's a game. Game का नाम पता है? Pole vault. Now what was your question?
What is Mohan practicing in picture 4? He is, बाकी तो यहीं पे मिल जाएगा आपको. He is practicing pole vault. You know this game? यहाँ पे प्लेयर के पास, जो एथलीट होता है उसके पास एक लंबा सा पोल होता है, and he comes running, he sticks the pole at a platform and he jumps with the help of that, and ऊपर एक दूसरा पोल लगा होता है, he has to cross it. आपने ओलंपिक्स के गेम्स में या नेशनल गेम्स में ये देखा है? You can just search for it and you'll find it. It's an interesting game, आपको अच्छा लगेगा देखने में. So that is pole vault. ठीक है, pole vault. Next is what are Anil and his friends pulling in picture 3? So let's see what was our picture 3. You know what is this? Tug of war. Tug of war में क्या खींचते हैं? Tug of war में क्या खींचते हैं? क्या खींचते हैं? रोप, है ना? टग ऑफ वॉर में हम क्या खींचते हैं? रोप. सो व्हाट आर अनिल एंड हिज फ्रेंड्स पुलिंग इन पिक्चर 3? दे आर पुलिंग अ रोप. नाउ सी, यहां पे सिर्फ मोहन के बारे में हमने बात की, सिर्फ वन है, मोहन है, सो वी यूज्ड ही. यहां पे अनिल एंड हिज फ्रेंड्स, ज्यादा लोग हैं, सो वी यूज दे. राइट, वन पर्सन के लिए ही, शी, आई, यू. ठीक है, ज्यादा लोगों के लिए वी, दे, देम, देयर. ठीक है. नेक्स्ट इज वेयर आर द बोट्स रेसिंग इन पिक्चर 2? लेट्स चेक फर्स्ट. पिक्चर 2, where is it racing? The boats are racing in a river. So the boats, where are the boats racing in picture 2? They are racing in a river. Right? They are pulling a rope. And first was, what is Mohan practicing? He is practicing pole vault. ठीक है. So first one is he is practicing pole vault. Second is they are pulling a rope. Last is they are racing in a river. Okay. Next is picture 1 and picture 6. What are the boys doing in picture 1? What are the girls doing in picture 6? Let's see picture 1. The boys are क्या कर रहे हैं? They are running. And picture 6, the girls are swimming. है ना? So what are the boys doing in picture 1? They are running. And what are the girls doing in picture 6? They are swimming. Easy? You can just look at the picture and complete the sentences, right? You can do it, right? So remember, when it is singular, you use he, she, it, I. Singular. And plural, and when it is more than one, they, them, their, we, us, you. Right? So for single we use different words, for plural we use different words. है ना? किसी को एड्रेस करने के लिए, किसी के बारे में जब आप बता रहे हो. ओके. नेक्स्ट, starting off with a new story today, and it's a very, very interesting story.
वाई, डू यू नो वाई? बिकॉज जितने भी लोग आप में से चंपक, देन ट्विंकल या फिर रीडर्स डाइजेस्ट, देन ऐसे कॉमिक बुक्स पढ़ते हैं, दे मे बी नोइंग हु नसरुद्दीन इज, राइट? नसरुद्दीन होजा के बारे में सुना है? ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैरेक्टर्स इन दीज कॉमिक्स. इन कॉमिक्स में आपको नसरुद्दीन होजा के बारे में बहुत सारी स्टोरीज मिलेंगी. लाइक अकबर बीरबल है ना, जस्ट वैसे ही. एंड बहुत फनी स्टोरीज होते हैं नसरुद्दीन के. सो टुडे यू हैव अनदर स्टोरी फ्रॉम नसरुद्दीन्स लाइफ एंड इट इज एज यूजुअल अ फनी स्टोरी. ठीक है, वील सी व्हाट इट इज. फर्स्ट वील रीड इट वंस, आफ्टर दैट वील अंडरलाइन ऑल दी difficult words. No, we'll be underlining along with it. We'll do the explanation later on. So keep your pencils ready. One day, Nasruddin was chatting with his friends. He began to boast. No one can match my skill in archery. I string a bow, take aim, and shoot the arrow. Whoosh! The arrow is sure to hit the right on target. Hearing this, one of his friends immediately brought a bow and some arrows. Giving them to Nasruddin, he said, "Here, Nasruddin, take this bow and arrow." Have you underlined? Then, pointing towards a target, he said, "Aim at that target and shoot an arrow." Nasruddin held the bow in his hand, strung it, and aimed at the target and shot an arrow. Whoosh! The arrow didn't hit the target. Instead, it fell down somewhere in the middle. Ha 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 ha! His friends started laughing. They said, "Hey Nasruddin, is this your best aim?" "Oh no, not at all," said Nasruddin, defending himself. "This wasn't my aim. It was Azad's aim. I just showed you how Azad shoots an arrow." Saying this, Nasruddin picked up another arrow. Once again, he strung the bow, aimed at the target, and shot the arrow. This time, the arrow fell a little further from where it had fallen before. But it certainly didn't hit the target. They asked Nasruddin, "And this must be how you shoot an arrow?" "Of course not," argued Nasruddin. "Even this aim was not mine. It was the chief guard's aim." Now somebody remarked, "Well, now who's next on the list?" Hearing this, all the friends burst out laughing. Nasruddin didn't say a word. He quietly picked up one more arrow. And again, and this time Nasruddin was really lucky. The arrow hit right on the target. Everybody stared at Nasruddin, their mouths agape in amazement. Before anyone could say anything, Nasruddin said triumphantly, "Did you see that? It is my aim. It was my aim." So, there goes the story. Did you understand the story? अब हम स्टोरी पढ़ते हैं. One day what happens? Nasruddin was chatting with his friends. नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था. ठीक है, अपन दोस्त लोग के साथ बात करते हैं ना, वैसे. He was chatting with them
and he started boasting about his archery skills. Boasting मतलब मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ. अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना होता है ना, मतलब अपनी तारीफ करते रहना. कोई मतलब कोई विश्वास करे ना करे, बस अपने बारे में बोलते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना. सो दैट इज बोस्टिंग. सो ही वॉज बोस्टिंग दैट मैं आर्चरी इतनी अच्छी करता हूँ, मेरा टारगेट कभी मिस नहीं होता. व्हाट इज आर्चरी? यू नो, बो एंड एरो से गेम होता है. इट इज़ ऑल्सो अ नेशनल गेम, है ना, देखा होगा ना आपने. सो आर्चरी में मेरा कोई मुकाबला नहीं. मैं जब भी कोई टारगेट फिक्स करता हूँ, मेरा एरो हमेशा जाके उस पर लगता है. ऐसा वो बोस्ट कर रहा था. सो उसके फ्रेंड्स में से एक को बहुत चिढ़ मची कि उफ बहुत हो गया. सो व्हाट डज ही डू? ही गोज एंड ब्रिंग्स सम एरोज एंड अ बो. वो जाके एक धनुष और एरोज लेके आता है एंड ही गिव्स इट टू नसरुद्दीन एंड टेल्स चलो अब जब इतना सुन लिया है तो अब देख भी लेते हैं. वो रहा तुम्हारा टारगेट, अब एम करो और एरो उस पर लगना चाहिए. नसरुद्दीन फंस गया. सो ही सेज चलो ठीक है मैं करता हूँ, अभी करता हूँ बोल के ही टुक द बो, ही स्ट्रंग द एरो एंड ही पुल्ड इट एंड ही लेफ्ट. ठीक है, उसने निशाना लगाया और छोड़ा. लेकिन क्या हुआ, उसको तो आता था नहीं. उसका बो सीधे जाके ज़मीन पे. सब लोग हंसने लगे. तो उन्होंने बोला हो अच्छा ये है तुम्हारा टारगेट, इसके बारे में तुम बोल रहे थे मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ये कर सकते हो तुम. तो नसरुद्दीन ने क्या बोला, नहीं नहीं नहीं, दिस इज़ नॉट माई एम. ये मेरा नहीं था, ये तो मैं दिखा रहा था कि आज़ाद कैसे बो चलाता है. सी एक्सक्यूज़, कितना अच्छा एक्सक्यूज़ दे दिया, बच गया वो. सो उसके फ्रेंड्स ने बोला ठीक है छोड़ो, एक और चांस देते हैं. अब उसने फिर से उठाया, पकड़ा, एम किया, खींचा, छोड़ दिया. वो भी जाके थोड़ा सा आगे जाके गिर गया. अब सब लोग फिर हंसने लगे. उन्होंने बोला अच्छा अब किसका था ये? तो ही सेड कि अरे ये तो चीफ का दिखा रहा था मैं. चीफ गार्ड इज जो महलों में ड्यूटी देते हैं उनमें, जो सबसे हाईएस्ट रैंक पे होगा, राइट. सो मैं तो चीफ गार्ड का दिखा रहा था, ये मेरा नहीं है. तो सब लोग हंसने लगे फिर से. नाउ अब उनमें से एक ने पूछा अच्छा ठीक है नेक्स्ट किसका दिखाने वाले हो? आपको किसी और का नाम भी लेना पड़ेगा ना उसको. तो वो सोचता है कि चलो रुको, अभी नाम नहीं लूँगा, पहले मैं बो चलाऊँगा उसके बाद नाम लूँगा. वो क्या करता है, ये लोग हंस रहे होते हैं एंड ही पुल्स आउट हिज बो, एरो खींचा और खींच के छोड़ दिया. एंड वो गलती से लग गया बिल्कुल सही जगह पे, तुक्के पे. ठीक है, ही वॉज लक्की, उसको आता जाता नहीं था, लकीली लग गया. एंड वो खड़ा हो गया, बोलते उसने क्या बोला, नाउ दैट इज माई एम, ये था मेरा एम. वहाँ बैठे सबको तो यही लगेगा ना कि नसरुद्दीन को तो आता है. सो दैट वॉज योर स्टोरी. सी हाउ ही फाउंड एक्सक्यूजेज व्हेन ही वॉज अनसक्सेसफुल, है ना. जब उससे काम नहीं बना तो उसने एक्सक्यूजेस बनाए कि ये उसका दिखाया मैंने, ये इसका दिखाया मैंने. एंड जब करेक्ट टारगेट पे लग गया, he said it was mine, right? So we'll read the story with the meanings, right? One day Nasruddin was chatting with his friends. Chatting is talking. Chatting is talking. Chatting means talking. He began to boast talk high about. ओके, दिखेगा नहीं ना आपको यहाँ पे. टॉक हाई अबाउट योरसेल्फ, मतलब अपने बारे में ही बहुत अच्छा बोलना. ही बिगैन टू बूस्ट, नो वन कैन मैच माई स्किल्स इन आर्चरी. आर्चरी बो एंड एरो से जो गेम है. आई स्ट्रिंग द बो, टेक द एम एंड शूट द एरो. ठीक है, स्ट्रिंग द बो, बो पे एरो लगा के खींचते हैं ना, आपने देखा होगा ना कैसे खींचते हैं, धनुष पे वो बाण लगा के खींचते हैं. सो दैट इज आई स्ट्रिंग द बो, टेक द एम, मैं टारगेट फिक्स करता हूँ, एंड आई शूट द एरो. वुश, दिस इज द साउंड that is made while you throw the
arrow. The arrow is sure to hit the target. What is target? Target means aim. Target means aim. So the arrow is sure to shoot the right target. जब मैं arrow भेजता हूँ तो वो पक्का जाके aim पे ही लगता है. Hearing this, one of his friends immediately मतलब जल्दी, immediately, immediately मतलब उसी टाइम, brought a bow and some arrows. उसका दोस्त गया and उसी टाइम पे bow और arrows लेके आया. Giving them to Nasruddin, he said, उसने नसरुद्दीन को वो सब दिया और क्या बोला? Here Nasruddin, take this bow and arrow. लो भैया नसरुद्दीन, पकड़ो इसको जल्दी से. Right? So, any other meaning from here? नहीं ना? Boost, talk high of yourself, target is aim, chatting is talking. ठीक है? उसने क्या बोला? लो भैया तुम इसे पकड़ो जरा. And target को दिखा के बोला, चलो वहां पे लगा के दिखाओ जरा. He said, aim at the target and shoot an arrow. पूरा टारगेट, लगाओ निशाना जल्दी से. Nasruddin held the bow in his hand. नसरुद्दीन ने बो पकड़ा, strung it, खींच के निशाना लगाया, and aimed at the target and shot the arrow. उसने पकड़ा, खींचा, देखा and छोड़ दिया. The arrow didn't hit the target. लेकिन उसका arrow नहीं लगा टारगेट पे. Instead, INSTEAD, instead मतलब उसके बजाय, वहां जाने के बजाय यहां चला गया, बोलते हैं ना, that way. It fell down somewhere in the middle. MIDDLE, middle. Middle means in between. Ha 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 ha. His friends started laughing. अब ये देख के तो हंसी आएगी ना, so दोस्त सब हंसने लगे. They said, वो लोग बोले, Hey Nasruddin, is this your best aim? अरे नसरुद्दीन, ये तुम्हारा बेस्ट एम था? Oh no no, not at all. And नसरुद्दीन बहुत कैजुअली बोलता, अरे नहीं नहीं, ये मेरा नहीं था, no no no. He said, Nasruddin, defending himself. Defending means, what is defending? To fight for. Defending is to fight for. अपने आप को डिफेंड करना. लाइक घर पे आपसे एक प्लेट टूट गया, मम्मी आके खड़ी हो गई, किसने किया? नहीं नहीं मैंने नहीं किया, मैंने तो बिल्कुल नहीं किया. सो यू आर डिफेंडिंग योरसेल्फ कि नहीं नहीं मैंने नहीं किया. चाहे आपने किया हो या नहीं किया हो, जब आप मना करते हो, आप अपने आप को सेव करने की कोशिश करते हो, दैट इज कॉल्ड डिफेंडिंग योरसेल्फ. दिस वॉजंट माई एम, ये मेरा एम नहीं था. इट वॉज आजाद्स एम, ये आजाद का एम दिखा रहा था मैं तुमको. I just showed you how Azad shoots an arrow. Saying this, Nasruddin picked up another arrow. इतना बोल के नसरुद्दीन ने दूसरा एक arrow उठाया. Once again, he strung the bow, aimed at the target and shot the arrow. एक और बार उसने same process repeat किया. This time the arrow fell a little further from where it had fallen before. इस बार वो arrow कहाँ गिरा? जहाँ पहले गिरा था उससे थोड़ा सा आगे. ठीक है, बस थोड़ा सा आगे. But it certainly didn't hit the target. लेकिन वो अभी भी टारगेट पे नहीं पहुंचा था. They asked Nasruddin, and this must be how you shoot an arrow. तो दोस्तों ने देखा, उनको हंसी आई, उन्होंने फिर से पूछा, अच्छा, वो पहले वाला तो आजाद का था, ये वाला तुम्हारा होगा ना? Of course not, argued Nasruddin. नसरुद्दीन ने फिर से बोला, नहीं बिल्कुल भी नहीं. Argue is argue, verbally fight, मतलब बातों में तर्क करते हैं ना, नहीं मैं नहीं करूंगा, मैंने नहीं किया, बातों में जब आप फाइट करते हो. सो आर्ग्यूड नसरुद्दीन. इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, ये भी मेरा नहीं था. इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम, ये चीफ गार्ड का एम था. चीफ CHEIF, chief means head. CHEIF, IEF, chief means head.
CHIEF chief. Guard, GUARD guard. GUARD guard. Guard वॉचमैन हो सकता है, सोल्जर हो सकता है, ठीक है. GUARD guard. Now somebody remarked. Remarked means to comment. जब आप एकदम सही सही कोई सम कर देते हो तो मैम बोलती है ओ वेरी गुड. सो ओ वेरी गुड इज अ रिमार्क टू कमेंट समथिंग, ठीक है. वो अब अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है. वेल नाउ हुज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट. तो अब उसके दोस्त पूछते हैं अच्छा आप किसके दिखाने वाले हो, बता दो पहले ही. Hearing this, all the friends burst out laughing. Burst out laughing मतलब बहुत जोर से हंसी आ गई, ठहाके मार के हंसते हैं ना. That is burst out laughing. BURST burst, फूट जाना. BURST burst. Nasruddin didn't say a word and he quietly picked up one more arrow. Nasruddin ज़्यादा बोला नहीं, वो चुपचाप जाके उसने एक arrow उठा लिया, ठीक है. Quietly, silently. Quietly, silently, ठीक है. Quietly is silently. Picked up one more arrow. उसने जाके चुपचाप से किसी को कुछ बोले बिना एक और arrow उठा लिया, ठीक है. And again उसने पकड़ा, string किया, उठा, खींचा and target पे छोड़ा. And this time Nasruddin was really lucky. And इस बार तुक्का लग गया, गलती से उसका सही निशाने पे जाके लगा arrow. The arrow hit the right target. Everybody stared at Nasruddin. STARED. Stared. Stare मतलब घूरना. अरे, तो that is staring. Their mouths agape in amazement. Agape मतलब ऐसा कर लेते हैं हम, कुछ सरप्राइजिंग देखा तो दिस इज इन अगेप. माउथ ओपन का ओपन रह जाना, ठीक है. अमेजमेंट व्हेन यू सी समथिंग अम्यूजिंग, है ना. सरप्राइज्ड, वंडर, ठीक है. बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग नसरुद्दीन सेड ट्रायम्फेंटली. ट्रायम्फेंटली, TRIUMPHANTLY. ट्रायम्फेंटली इज विक्ट्री. ट्रायम्फेंट इज विक्ट्री मतलब अपनी जीत में, वो जीत गया ना, उसने दिखा दिया कि हाँ मैं टारगेट पे लगा सकता हूँ. उसने अपनी जीत में उसने क्या बोला, डिड यू सी दैट. नाउ दैट इज माई एम, ठीक है. अब लगा ना, अब देखा तुमने, दैट इज माई एम. ओके, सो दैट इज योर स्टोरी. ट्रायम्फेंट इज विक्ट्री एंड अगेप इज ओपन. ओके, ऐसे कर लेना, राइट. So that is your story. Simple story. The story is about an episode of Nasruddin's life where he boasts about his perfection in archery. But as he fails to aim the target, he finds excuses. But with the last trial, he gets lucky and is able to aim for the target. So the story is about an episode in Nasruddin's life. Nasruddin के life का एक छोटा सा incident है where he fails to aim the target. उसने अपने बारे में बहुत ऊंचा ऊंचा बोला था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ. बट व्हेन हिज फ्रेंड्स ट्राई टू टेस्ट हिम, ही फेल्स 2 times एंड बोथ टाइम ही फाइंड्स एक्सक्यूजेस. वो दिखाना नहीं चाहता था कि उसने झूठ बोला, सो ही फाइंड्स एक्सक्यूजेस कि वो कर सकता है. अब वो तो किसी और का दिखा रहा था कि ये मेरा एम नहीं है, ये आज़ाद का एम है, ये चीफ का एम है, ऐसा. एंड लास्ट में जब थर्ड ट्रायल वो करता है तो गलती से उसका सही निशाने पे एरो लग जाता है. एट द लास्ट ट्रायल, बाय हिज लक, ही गेट्स टू एम द टारगेट. सो विद द लास्ट ट्रायल ही सेज दैट नाउ दैट इज माई एम. ये जो अभी किया ना, ये है मेरा एम. सो दिस इज हाउ दिस एपिसोड एंड्स, ठीक है. दैट इज हाउ इट एंड्स. इसमें कुछ बहुत बड़ा कुछ है नहीं, मतलब इट्स अ फनी लिटिल स्टोरी. नसरुद्दीन होजा के बहुत सारी स्टोरीज आपको कॉमिक्स में या फिर रीडर्स डाइजेस्ट में मिल जाएंगी. यू शुड रीड देम इफ़ यू गेट अ चांस. दे आर वेरी फनी एंड यू विल लव देम, ठीक है. सो वील डू द एक्सरसाइजेस नेक्स्ट टाइम.
and we are starting off with our exercises for Nasruddin's aim, है ना? You remember the story? Story याद है आपको? It was a small episode in Nasruddin's life where he and his friends were chatting and Nasruddin starts boasting about his skills in archery, right? नसरुद्दीन और उसके फ्रेंड्स बैठ के बात कर रहे थे. नसरुद्दीन शुरू हो जाता है, मैं आर्चरी में ऐसा हूँ वैसा हूँ, मैं कभी निशाना लगाता हूँ तो वो गलत नहीं होता, एकदम करेक्ट जाता है, लाइक दैट. सो हिज फ्रेंड्स ट्राई टू टेस्ट हिम. दे ब्रिंग सम एरोज एंड टेल हिम टू एम अ टारगेट. उसके फ्रेंड्स सोचते कि चलो अब इतना बोल रहा है तो चेक कर लेते हैं. सो दे ब्रिंग हिम बोज एंड एरोज एंड दे टेल हिम टू टारगेट को एम करने के लिए बोलते हैं. फर्स्ट 2 times ही फेल्स टू डू दैट. पहले दोनों टाइम वो फेल हो जाता है. एंड व्हाट डज ही डू? ये नहीं कि ठीक है फेल हो गया तो सेइंग कि अच्छा सॉरी गलती हो गई, नहीं. व्हाट ही डिड, ही स्टार्टेड गिविंग एक्सक्यूजेस. अरे ये मेरा एम नहीं था, मैं तो दिखा रहा था कि आज़ाद कैसे करता है. फिर से गलत हुआ तो अरे नहीं बाबा, दिस इज़ नॉट माइन, दिस इज़ चीफ गार्ड्स. तो मतलब वो एक दूसरे लोगों के ऊपर वो चीज़ बोलने लगा. एंड थर्ड टाइम गलती से उसका एम करेक्ट जाके लग जाता है. एंड दैट टाइम व्हाट ही सेज, देखा ये मेरा वाला था, राइट? सो दैट वाज योर स्टोरी. वी विल बी डूइंग द एक्सरसाइजेस टुडे, राइट? सो वी हैव न्यू वर्ड्स, वी हैव ऑलरेडी डन द मीनिंग्स, स्टिल वी विल जस्ट रिवाइंड देम. चैटिंग इज टॉकिंग. चैटिंग इज टॉकिंग. आर्चरी, इट्स अ गेम विद बो एंड एरो, है ना? बो एंड एरो का गेम है. स्ट्रिंग, आपका जो धनुष होता है थोड़ा फैंसी धनुष हो गया, बट स्टिल उस पर एक स्ट्रिंग लगी होती है ना, उस पर एक स्ट्रिंग लगी होती है, दैट इज स्ट्रिंग. मतलब जो वायर लगी होती है जिसको आप खींचते हैं, दैट. देन टारगेट इज एम. My target is to score 60% in the exam. My aim is to score 60% in exam. मतलब मुझे क्या करना है, मेरा गोल क्या है. नेक्स्ट इज डिफेंडिंग, टू फाइट फॉर. मतलब अपने लिए लड़ना, लड़ाई नहीं, ठीक है? अपने लिए लड़ना, मैंने नहीं किया ऐसा या मैंने ये किया है, दिस इज माइन. अब डिफाइन करना. अमेजमेंट, वंडर, मतलब वो, ठीक है? ट्रायम्फेंटली इज विक्ट्री, जीतना. ट्रायम्फेंट इज विक्ट्री, जीतना, ठीक है? सो CHATTING chatting, ARCHERY archery, STRING string, TARGET target, DEFENDING defending, AMAZEMENT amazement, TRIUMPHANTLY triumphantly. ओके, ठीक है, चलो. What did Nasruddin boast about? Nasruddin was boasting about his आर्चरी स्किल्स. ठीक है, किसके बारे में बोस्ट कर रहा था? अबाउट हिज आर्चरी स्किल्स, कि मैं कभी भी गलत निशाना नहीं लगाता हूँ, एकदम करेक्ट निशाना जाता है मेरा, एंड ऑल दैट. ठीक है, सो ही वॉज बोस्टिंग अबाउट हिज आर्चरी स्किल्स. नेक्स्ट, why did Nasruddin take someone else's name each time he missed the target? हर बारी जब उससे टारगेट नहीं लग रहा था तो उसने किसी और का नाम क्यों लिया? क्यों लिया? Nasruddin took
other's name when he missed the target so that his friends do not make fun of him. क्योंकि ऐसा so that उसके दोस्तों को लगे कि हाँ ये दूसरे का बता रहा है एंड वो उसका मजाक ना उड़ाए, है ना? नहीं तो सबको पता चल जाता कि इसको तो आता ही नहीं है, राइट? So Nasruddin took others' name because he missed the target so that his friends do not make fun of him. ठीक है? So that उसके friends उसका मजाक ना उड़ाए. Why did Nasruddin say it was my aim the third time? तीसरी बार उसने क्यों बोल दिया कि it was my aim? क्योंकि तब करेक्ट लग गया था, है ना? Nasruddin said it was his aim the third time because the arrow hit the target. क्योंकि लास्ट टाइम जब किया तब वो करेक्ट एरो जाके एम जहाँ एम किया था, जहाँ टारगेट था वहीं जाके लग गया. सो अब तो वो बोल सकते, देखा मैंने एकदम करेक्ट जगह पे निशाना मारा. सो ही थर्ड टाइम जब करेक्ट लगा ही सेड द टारगेट इज माइन, द एम इज माइन. ठीक है? Nasruddin said it was his aim the third time because the arrow hit the target. Next, do you think Nasruddin was good at archery? आती थी उसको? बिल्कुल भी नहीं. Nasruddin was not good at archery. ठीक है? Nasruddin was not good at archery. नहीं आता था उसको, बिल्कुल नहीं आता था एक्चुअली, है ना? Next is a small story. Can you see Nasruddin? अच्छा, आपको कैसे कहीं पे भी देख के समझ में आएगा कि ये नसरुद्दीन हुजा है? नसरुद्दीन हुजा की टोपी देखो, नसरुद्दीन हुजा की टोपी हर जगह ऐसी है, ऐसी, एंड इट्स वेरी कलरफुल. नॉडी की टोपी पता है? ओके, आप लोग तो बहुत छोटे नहीं हो, सो आपको नॉडी नहीं पता होगा, मतलब अब नहीं देखते होगे, अब तो न्यू कार्टून्स आ गए, राइट? तो नॉडी की टोपी के पीछे एक बेल लगा होता था यहाँ. सो नसरुद्दीन हुजा का टोपी भी ऐसा ही है, बट ऐसा खड़ा एकदम. ठीक है? सो दिस इज नसरुद्दीन हुजा. एंड नसरुद्दीन हुजा का क्या बोलते हैं, फेस पे यहां से यहां एक लंबी सी दाढ़ी भी है, ऐसी वाली. सो दिस इज समवॉट what he looks like. मतलब ये तो बहुत बच्चे जैसी शक्ल हो गई, मतलब है वो बहुत बड़ा इंसान, एज्ड है, उसकी दाढ़ी यहाँ से शुरू होके यहाँ ख़त्म होती है, एंड उसकी टोपी बिल्कुल ऐसी है जैसे उसकी दाढ़ी को उल्टा कर दिया हो, ऐसा. सो नसरुद्दीन हुजा की एक छोटी सी अलग सी स्टोरी यू हैव. लेट्स हैव अ लुक. सो one day the king forced Nasruddin Huja to go on a hunt with him. एक दिन नसरुद्दीन हुजा का जो किंग था उस एरिया का, उसने नसरुद्दीन हुजा को फोर्स किया कि चलो, नहीं मुझे नहीं सुनना कुछ, तुम चलो मेरे साथ, हम दोनों साथ में शिकार पे जाएंगे. ठीक है? When the hunting party returned in the evening, रात के शाम के टाइम जब हंटिंग सब खत्म हो गया एंड ये लोग जब वापस आए,
तब किंग ने नसरुद्दीन से क्या पूछा? किंग आस्क्ड हाउ डिड द हंट गो, कैसा था तुम्हारा हंट? एंड नसरुद्दीन ने क्या आंसर दिया? इट वॉज वंडरफुल। ठीक है, देखते आगे। सो द किंग अगेन आस्क्स डिड यू किल एनी एनिमल, तुमने किसी एनिमल को मारा? हुजा ने कहा नो। देन ही आस्क्स डिड यू चेज एनी एनिमल, किसी एनिमल के पीछे भागा दौड़ी की तुमने? ही अगेन सेज नो। अब किंग गुस्सा होने लगता है, फिर ही पूछता है तुमने किसी एनिमल को एटलीस्ट देखा? तो नसरुद्दीन कहता है नो। देन द किंग आस्क्स देन व्हाई डू यू से द हंट वाज वंडरफुल? सी, जब आप शिकार पे जा रहे हो, सो व्हाट इज द मिनिमम थिंग यू डू, कि एटलीस्ट आपने किसी एनिमल को देखा, है ना? फिर हो सकता है कि आप उसने भगाया आपने, फिर हो सकता है कि आपने उसको मार दिया। नाउ नसरुद्दीन ने तीनों नहीं किया। फिर किंग पूछता है अरे बाप रे, तुमने कुछ नहीं किया, फिर क्यों कह रहे हो कि द हंट वाज गुड? नसरुद्दीन सेज oh my dear, when you go to hunt such dangerous animals, it is always marvelous not to come across one. So नसरुद्दीन क्या बोलता है? हे भगवान, मैंने इसलिए बोला कि मेरा हंट अच्छा था क्योंकि जब तुम जंगली जानवर को मारने जा रहे हो, इट इज़ वेरी गुड कि कोई जंगली जानवर आपके सामने नहीं आए। सी व्हाट डज ही मीन, कि अगर जंगली जानवर उसके सामने आएगा तो उससे कुछ नहीं होने वाला, इनफैक्ट जंगली जानवर उसको मार देगा, कन्फर्म। सो ही सेज कि जब आप किसी हंट पे जा रहे हो, इट इज़ ग्रेट, इट इज़ मार्वलस, मार्वलस मीन्स ग्रेट, इट इज़ वेरी गुड कि आप किसी जंगली जानवर के सामने नहीं आए हो। ठीक है, सो दिस वॉज अ फनी साइड कि राजा वॉज वेरी सीरियस, किंग वॉज वेरी सीरियस कि तुमने कुछ किया ही नहीं, फिर क्यों तुम्हें अच्छा लग रहा है? ही सेज कि मेरी जान बच गई इसलिए मेरे को अच्छा लग रहा है। ओके, सो दैट वॉज अ शॉर्ट स्टोरी अगेन। So here is a homework for you. Be a Nasruddin Huja yourself. Can you see a grandma? Grandma धीरे धीरे ऊपर ऊपर चढ़ रही थी एंड धड़म करके नीचे गिर गई। ज़्यादा ऊपर नहीं गई थी, वो यहीं से गिर गई, उनका स्टिक गिर गया, उनके स्पेक्स गिर गए। एक बच्चा उनसे पूछता है आर यू हर्ट, क्या आपको लगी? तो ग्रैंडमा क्या बोली? What would you have done if your grandma slipped? Now यहाँ पे जो बच्चा है, he is asking are you hurt? You have to be Nasruddin Huja. आपको नसरुद्दीन हुजा की तरह सोच के you have to find out something funny about this. आपको कुछ funny सा answer इसमें ढूंढना. This is not an exam question, this is just a fun activity. So whenever you get time, you just have to sit and think कि क्या हो सकता है कुछ funny सा, right? Next is shoot the arrows and hit the target by matching the word and the correct meanings. You have to match the correct meanings. चलो, first is chatting. First is chatting. Shooting with bow and arrow, talking informally, protecting from attack, great surprise, happy and proud, the goal intended to be hit. So first one is shooting with a bow and arrow. शूटिंग विद द बो एंड एरो इज आर्चरी, है ना, हमारे गेम का नाम है। सेकेंड इज टॉकिंग इनफॉर्मली, ऐसी बातचीत करना, दैट इज चैटिंग, सो दिस इज चैटिंग। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक, किसी पे अटैक हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करना, दैट इज डिफेंडिंग, है ना। ग्रेट सरप्राइज, अमेजमेंट। हैप्पी एंड प्राउड, हैप्पी एंड प्राउड के लिए क्या है? ट्रायम्फेंट। देन the goal intended to be hit, aim या फिर target. So let's do amazement, great surprise, archery, shooting with bow and arrow, defending, protecting from attack, target, goal to be hit, triumphant, happy and proud. Okay? हमने स्टोरी में भी वर्ड मीनिंग्स किया, देन न्यू वर्ड्स में भी वर्ड मीनिंग्स किया. नाउ यू शुड बी वेरी थरो विद द वर्ड मीनिंग्स, राइट? सो chatting is talking informally, amazement is great surprise, archery is shooting with bow and arrow, defending is protecting from attack, target is the goal intended to be hit,
and triumphant is happy and proud. Okay, cholo next. Replace the bold letters with a word from quiver and rewrite the sentence. What is a quiver? Quiver is the bag, carrier जिसमें बोझ रखते हैं. आपने रामायण देखी है? श्री राम के पास, लक्ष्मण के पास, सबके पास एक बैग होता था ना, कंटेनर होता था जिसमें से वो बो निकाल के मारते थे. सो दैट इज अ क्विवर. ठीक है, सो दिस इज अ क्विवर. क्विवर में यू हैव 3 words: टारगेट, सर्टेनली, रिमार्क्ड ऑन. टारगेट, सर्टेनली एंड रिमार्क्ड ऑन. उनके मीनिंग्स ये हैं. सो यू हैव टू मैच एंड राइट इट हियर. So first one is, in no time she hit the object she aimed at. Object she aimed at means target. So the sentence will be, in no time she hit the target. Okay. Next is, Nasruddin was surely not a good archer. Nasruddin was surely, पक्का. पक्का के लिए कौन सा वर्ड है वहां पे? Certainly. So Nasruddin was certainly not a good archer. Right? Next is, the teacher said something about his good handwriting. He felt very happy. Said something, remarked on. So यहाँ पे आपका आ जाएगा remarked on. बाकी sentence will be same. Okay? So target is something you aim at. Certainly, surely. Remarked, किसी चीज पे remark करना मतलब comment करना. ठीक है, इट कैन बी गुड, इट कैन बी बैड. देन दिस इज अ पिक्चर ऑफ राहुल गुप्ता. यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो, राइट अ पैराग्राफ अबाउट हिम इन योर नोटबुक. कौन है भाई राहुल गुप्ता? ओ, दिस इज राहुल गुप्ता. दिस इज राहुल गुप्ता. वी हैव टू राइट अ पैराग्राफ अबाउट हिम. लेट्स सी. Indian cricket, 8 hours practices, eats healthy food, runs 2 kilometers every day, batsman. कर सकते हैं? One thing is clear, he is a sportsman, है ना? He is a sportsman. So we'll be writing a composition accordingly. So let's start. क्या शुरू करें? राहुल गुप्ता is an Indian batsman. Right? Indian और batsman हो गया. So he plays for the Indian cricket team, है ना? He started playing cricket when he was 7. जब वो 7 years का था, वो तब से क्रिकेट खेल रहा है. So what all words we used? Now, he practices daily for कितने hours? 8 hours. Then now eat healthy food and runs 2 kilometers every day. Now to stay healthy, to stay fit, he eats healthy food and runs for 2 kilometers daily. Done? सारे words use कर लिए हमने. Okay?
So Rahul Gupta is an Indian batsman. He started playing cricket when he was 7. He practices daily for 8 hours. Then to stay fit, he eats healthy food and runs for 2 kilometers every day. Yeah, for daily, right? So now if you want, you can write it as 1, 2, 3 or 4. If not, you can write it in a paragraph. मतलब जहां आपका फुल स्टॉप आया, नेक्स्ट सेंटेंस को आप वहीं पे स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, दिस इज राजीव्स फैमिली. दे आर अ हेल्दी फैमिली. सी वॉट ईच वन डज टू रिमेन हेल्दी. नाउ फादर, ही इज यूजिंग डम्बल्स, मतलब ही एक्सरसाइजेस डेली. नेक्स्ट, मदर, शी इज डूइंग योगा. Sita is skipping. Grandpa is walking. Grandma is drinking water. So maybe they want to show that grandma has a healthy diet. And Rajiv is running. Okay. Use the words and or but and make sentences as you can about Rajiv's family. So we have to make sentences about Rajiv's family. Okay? So for example, grandpa and grandma get up early in the morning. Grandpa is walking but Rajiv is jogging, right? So we have to use and or but. हमें and but use करना है, ठीक है? So Rajiv's mother and sister stay at home mother likes yoga but his sister loves skipping. ओके, देखा पहले वाले सेंटेंस में राजीव मदर एंड सिस्टर एंड यूज किया, सेकंड में बट. एंड कब यूज होता है? जब दो सेम चीजों के बारे में हम बात कर रहे हो, ठीक है. एंड बट कब यूज होता है? जब कॉन्ट्रडिक्शन हो, मतलब कोई ऑपोजिट चीज या फिर जो एक जैसी नहीं है वैसी चीजें हो, ठीक है. सो वन मोर वील डू. वन इज दिस, सेकेंड इज दिस. नो, ये तो एक ही हो गया. Second we'll do is Rajiv and grandpa go out in the park. राजीव और ग्रैंडपा दोनों बाहर हैं, लेकिन राजीव runs for 1 kilometer but grandpa prefers to walk. So दोनों बाहर जाते हैं, दोनों जा रहे हैं बाहर, सो एंड यूज होगा. लेकिन राजीव को भागना अच्छा लगता है एंड ग्रैंडपा को चलना, इसलिए दोनों ऑपोजिट उल्टा उल्टा चीज़ें हैं, सेम नहीं है, इसलिए बट. ठीक है, जब सेम चीज़ें हैं तो एंड, अगर उल्टा उल्टा है तो बट. ओके, यू कैन राइट इट अकॉर्डिंग टू यू. यही 4 सेंटेंस लिखना ज़रूरी नहीं है, आप पिक्चर देख के आपके हिसाब से सेंटेंस चेंज कर सकते हो. ठीक है, fill in the grid with the words given below. You can use them one more time. Okay, acha, see, you have a grid. First is name of the game. Games के name देखो, cricket, hockey, table tennis and football. And यहाँ पे आपके पास कुछ options हैं. What you play with, where you play it, number of players. And ऊपर आपको देखो क्या क्या दिया हुआ है. स्टेक, बैट एंड बॉल, 11, टेबल, रैकेट, ग्राउंड, 2 to 4,
फुटबॉल स्टेडियम एंड बॉल। आपको ऊपर के वर्ड्स को देखना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि वो कहाँ पे फिट होते हैं। विल स्टार्ट विथ स्टिक। ओके, स्टिक इज समथिंग यू प्ले विथ। नाउ यू हैव टू टेल कौन से गेम में स्टिक यूज होता है। क्रिकेट में, हॉकी, टेबल टेनिस या फुटबॉल। हॉकी, राइट? यू प्ले विथ स्टिक। नेक्स्ट इज बैट और बॉल। You play what with bat and ball? Cricket, right? So bat or ball. Next is 11. It's a number. इसमें से कौन से गेम में 11 प्लेयर्स होते हैं? क्रिकेट में, so 11. टेबल। टेबल क्या खेलने के लिए चाहिए यहाँ पे? टेबल टेनिस के लिए। नेक्स्ट इज रैकेट। रैकेट कौन से गेम में चाहिए? वो भी टेबल टेनिस में चाहिए, राइट? सो टेबल रैकेट। ओके, नेक्स्ट इज बॉल। नाउ बॉल टेबल टेनिस में भी है, हॉकी में भी है, फुटबॉल में भी है, क्रिकेट में भी है ना? सो यू कैन राइट बॉल इन ऑल एवरी बॉक्स। बॉल के अलावा फुटबॉल भी है, सो वील पुट फुटबॉल इन फुटबॉल। नेक्स्ट इज ग्राउंड। वेयर डू यू प्ले इट? क्रिकेट का ग्राउंड होता है कि स्टेडियम होता है? दोनों होता है ना, सो यू कैन राइट ग्राउंड और स्टेडियम। देन हॉकी। हॉकी का स्टेडियम नहीं, फुटबॉल का स्टेडियम, हॉकी का ग्राउंड है ना? हॉकी का ग्राउंड, फुटबॉल स्टेडियम। टेबल टेनिस इंडोर स्टेडियम। इंडोर स्टेडियम क्या होता है? जो चारों तरफ से बंद, अंदर ही अंदर होता है। टेबल टेनिस देखा है ना, एक टेबल है सिर्फ एंड 2 प्लेयर्स होते हैं, सो यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ स्पेस। ठीक है? देन इज 2 to 4. For table tennis, you have 2 to 4 people. Okay? ठीक है ना? So the next one is using the information in the grid, write sentences about each game. अभी हमने जो grid किया ना, cricket, hockey and table tennis और football. So now you have to use that information to complete sentences, right? See, cricket का is given. Cricket is an outdoor game. We play it with a bat and ball. There are 11 players in this game. So we'll write for table tennis. ठीक है? हाँ, टेबल टेनिस के लिए लिखते हैं। टेबल टेनिस is an indoor game. Next, we play it with ball and racket, है ना? रैकेट और बॉल से खेलते हैं। एंड देयर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम। क्रिकेट में, टेबल टेनिस में कितने प्लेयर्स होते हैं? देयर आर 2 to 4 players in table tennis, right? या तो 2 people के बीच में हो सकता है या फिर पेयर में भी होता है। So for table tennis is an indoor game. We play it with a ball and racket. There are 2 to 4 players in this game, right? Now in the similar format you can write for football and क्या था? फुटबॉल और हॉकी। ठीक है? हॉकी और फुटबॉल के लिए यू हैव टू राइट। ठीक है? सेम मैनर। क्या क्या लिखना है? कितने प्लेयर्स खेलते हैं, किस किस चीज़ से खेलते हैं, एंड वो गेम इंडोर है या आउटडोर है। ओके? The following words are used in various sports. List them under the sports that they are used in. Okay, यहाँ पे आपको पास कुछ words है, दिख रहा है?
googly, goal, LBW, penalty, free kick, penalty, corner. So you have to tell कि ये जो गेम्स के नाम है, गेम्स का जो क्या बोलते हैं इनको, वर्ड्स के अलावा क्या बोल सकते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज है ना ये. सो ओके, ये जो टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी, हाँ, टर्म्स जो हैं वो कौन से गेम के हैं. सो आपके गेम्स देखो कौन कौन से हैं. हॉकी, क्रिकेट एंड फुटबॉल. ओके, हॉकी, क्रिकेट एंड फुटबॉल. गूगली, क्रिकेट, गोल, फुटबॉल, LBW, क्रिकेट, पेनल्टी किस में होता है, हॉकी, पेनल्टी कॉर्नर, फुटबॉल, फ्री किक, फुटबॉल. सही बोला, सही बोला ना. चलो लिखते हैं. हॉकी, फ्री किक, नेक्स्ट, सॉरी पेनल्टी, क्रिकेट, गूगली, LBW, फुटबॉल, फ्री किक एंड पेनल्टी कॉर्नर. राइट, कुछ रह गया क्या? फ्री किक, पेनल्टी, गोल. हॉकी, फुटबॉल में गोल होता है, हॉकी में भी गोल होता है क्या? फुटबॉल में गोल होता है, फुटबॉल में गोल होता है. फुटबॉल, ओह फुटबॉल नहीं, गोल. हॉकी का जब करेक्ट नेट में लेके चले जाते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? उसको गोल नहीं बोलते. ओके, यू कैन चेक इट आउट. है, आई एम नॉट श्योर. चलो, सो दैट वाज ऑल फॉर द एक्सरसाइजेस इन दिस चैप्टर. थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है फॉर द एक्सरसाइजेस पॉइंट ऑफ व्यू से. स्टोरी छोटी है बट द एक्सरसाइजेस अ लिटिल बिट लेंदी. ठीक है, बट आप जब करोगे तो इतना लेंदी नहीं लगेगा. राइट, so it will be easy for you. I know you'll do it very well. ये सारे एक्सरसाइजेस कॉपी में करने का ज़रूरत नहीं है. आई गेस जो गेम्स वाले हैं दैट विल बी योर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस. द क्वेश्चंस एंड न्यू वर्ड्स मीनिंग्स विल बी इन योर notebooks, right? So that was your chapter. We have done the chapter and the exercises. I will meet you next time with a new story or a poem. Till then, take care. Bye bye.